ये कि सबसे पहले जो हथियार उतारा है ना, जो हथियार को निकालना पड़ेगा, दिशाम करना पड़ेगा। जैसे भारत पाकिस्तान को बोलता है, जो टेररिज्म मिलिटेंट कैंप जो है पाकिस्तान में, जब वो ख़त्म करेगा तब बातचीत होगा। जैसे मणिपुर में भी कुकी मिलिटेंट जो है, जो सू करके जो सस्पेंशन ऑपरेशन जो सर ने बताया था, वो निकालने के बाद वो दिशाम हो जाएगा। उसके बाद अपने आप बंदूक जो फायरिंग जो है कुकी लोगों का मैतेई के ऊपर, वो बंद हो जाएगा। एक बार फायरिंग बंद होगी तो शांति चालू हो जाएगा। आपसे सर एक तो आप अपना एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद मैं सवाल पे आता हूँ। I am Major Yambe Mangamba Singh, retired army officer, and I've served as ADC to Governor Jammu Kashmir with Mr. Nehru as well as Mr. Jagmohan. I have understood what is the art of governance after serving with them. I am deeply hurt by what has happened in Manipur, but I am also hurt that it is not been planned well, it is not been executed well. Who is responsible for this? Mr. Nehru? Many people said this. Mr. Nehru and Nehru's policies is responsible for this kind of disturbance in Manipur. No, I would not blame Mr. Nehru or anything. I would just go back to history of Manipur. 1830, Maharaja Chandrakirti's time, Mr. Macklon was the political agent. That is the time they bought cookies to come and settle in the south of Manipur to stop some disturbances with various tribes. But those are the original cookies who came. But after 1961, you see the number of villages which have increased up to 1,600 villages have increased. Till here is my point that I agree with the demand of Meitei, scheduled tribe for Meitei, NRC, open road from Imphal to Dimapur, Imphal to Jiribam, then resettle all these people who have been burnt. Place Meitei to go back to where they were in Churachampur. Kuki can also come back to Imphal and settle correctly. But Government of India as well as Manipur government must say the cause. Sir, as per census data of 1951, Meitei population is 59% in 1951. And now, if we are talking about latest census data 2011, Meitei population is 44%. For this disturbance, what's going on in Manipur, you think the population disbalance is equally responsible for this violence or disturbance? No, I would answer your question very simple. This is not Hindu versus Christian. It is not Meitei versus Kuki. It is Meitei versus Chin Kuki, illegal immigrant. And partially Assam Rifle is responsible for misconduct. I have highly criticized Assam Rifle being an army officer. It is a paramilitary force under the Ministry of Home, army officers on deputation, and they have the troops from the local area. And they are Kuki troops in the Assam Rifle whose loyalty is to the Kukis. As a result, in the last 2 years, after Assam Rifle is looking after the fencing of Indo-Myanmar fencing in place of BSF, the number of illegal immigration has increased. And plus, what happened in Manipur yesterday at More, 300 Chin Kuki militants came, and there was a massive fire which came out in the Imphal newspaper that finally it was the Manipur police supported by BSF which fought with the Chin Kuki militant. Assam Rifle was just a fence sitter. So earlier, prior to this, 31 MLAs of Manipur wrote to the Home Ministry, please remove 3 battalions by name and number. But nothing has happened till now. And Assam Rifle is not executing its duty correctly. If you are there to stop the fight between Meitei and Kuki, be a neutral force. Otherwise, Meitei, who has in the rehabilitation camp, has said, I want to go back to Churachampur, but before that, please remove the Assam Rifle, don't give me any protection, I will settle with the local Kukis and get back to my home. That is the distrust they have about Assam Rifle. Through your channel, I would request, whoever Assam Rifle has made mistake, disciplinary action should be taken against the officers, or the DG Assam Rifle should be told, why are you not taking action against your forces? You please do your homework. Okay. This message must be conveyed. आप बात करेंगे?
मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इधर आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाइए कि बात करने में सहूलियत रहेगी कि अभी जो मैतेई और कुकी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जो अब एक और एजेंडा बन रहा है, वो एजेंडा ये बन रहा है कि मैतेई समुदाय हिंदू धर्म में ज़्यादा मान्यता रखता है, जो कि आप लोग लगातार उसको कंडम भी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाना बेहतर है कि मैतेई समुदाय में हिंदू बहुसंख्यक हैं और कुकी में ईसाई। और जो ये अभी जो रिसेंट कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें हजारों चर्चों को तोड़ दिया गया, और उधर से भी कुकी समुदाय की तरफ से भी आपके जो प्रैक्टिस टेम्पल्स है, फेमस प्रैक्टिस टेम्पल हैं, वहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा, जो कुकी रीजन में है। इस तो सवाल क्या है? सवाल यही है कि क्या ये धार्मिक यानी रिलीजियस फाइट की तरफ भी बढ़ रहा है क्या? एक तरफ देखिए, इन लोग की नैरेटिव जो है कुकी का, इसलिए इन लोग ने ये शुरू किया प्रोपेगेंडा में कि ये रिलीजियस फाइट है। जैसे हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उन लोग ने माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कुकी है, जो क्रिश्चियन है, उन लोगों को टॉर्चर किया और उन लोगों को मतलब इन लोग के साथ फाइटिंग किया है, अटैक किया है। ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई हकीकत वाली कोई चीज़ सामने नहीं आया। और एक तरफ देखिए, इसके लिए उन लोगों को बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं, जैसे फॉरेन फंडिंग्स, मिशन जो क्रिश्चियन मिशन है वो किस तरह काम करते हैं वो तो हर व्यक्ति जानते हैं, जो ख़ास तौर पे इंडिया में, क्योंकि एक मिशन के अंदर फंडिंग जो है करोड़ों रुपया उनके लिए आते हैं बाहर से। तो इसके लिए कि अगर ये प्रोपेगेंडा बन के इस खबर को फैला जाए कि हिंदू लोग ने क्रिश्चियन को अटैक किया है, तो देखिए अभी हकीकत में अभी क्या हो रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है, यूएस में भी अभी प्रेशर यूएस से भी आ रही है, और अभी यूके में भी वो चर्चा हो गया है यूके पार्लियामेंट में। तो ऐसे करके जहाँ जहाँ जो क्रिश्चियन डोमिनेंट जो कंट्री है, वहाँ से उन लोगों को फ़ायदा मतलब सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली और मेंटली और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। इसके लिए उन लोग ने ये ज़बरदस्त इसको फ़ायदा उठाने के लिए ये टॉपिक बनाया, नैरेटिव बनाया और प्रोपेगेंडा करके इसको फैलाया। हकीकत में ये है कि आप लोग ने हमारी जुलाई तारीख का 15 तारीख को एक जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हम लोग ने मैतेई समुदाय की साइड से, जो मैतेई क्रिश्चियन है, उन लोग ने एक प्रोटेस्ट के लिए परमिशन लिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसको भी कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या रीज़न था उसका। अगर वो प्रोटेस्ट अगर 2 महीने पहले आया होता, तो ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट, यूएसए या यूके से जितना भी जो उन लोग का जो चर्चा हो रहा है, सब कुछ रुक सकता था, क्योंकि इसमें साफ साफ वो लोग ये कह रहा था कि ये जो है कुकी जो क्रिश्चियन हैं, उन लोग ने मैतेई क्रिश्चियन जो सुरचामपुर में, ख़ास तौर पे सुरचामपुर में कम से कम 150 हाउस होल्ड जो है वो क्रिश्चियन है, सब जो मैतेई समुदाय से बिलोंग्स करते हैं, उन लोग का घर और तीन चर्चेस वो जलाया गया। तो इससे साफ तौर पे हम ये इसको ये कह सकता है कि दिस इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन क्रिश्चियन और हिंदू, और इट इज़ नॉट इन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा नैरेटिव। दिस इज़ बिल्कुल व्हाट यू कॉल नॉनसेंस। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी जो बोला है कि आपने कि मैतेई समुदाय जो है मैक्सिमम हिंदू है, तो आपने भी एक डाटा लेके आया, अभी जो मैतेई है ओनली 44%, राइट? सो मैतेई, व्हेन यू लुक एट द डाटा, मैतेई ये लोग जैसे जहाँ भी हो, जब लड़ाई होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, हमेशा माइनॉरिटी की बात सुनते हैं, मेजॉरिटी हमेशा गलत समझते हैं। लेकिन व्हेन वी लुक एट द मैतेई, वी आर नॉट द मेजॉरिटी, इट इज़ कॉल्ड द माइक्रो मेजॉरिटी। मैं साफ अभी दोबारा कह रही हूँ, देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड माइक्रो मेजॉरिटी। जब 56 combination of tribals and 44 मैतेई means we are micro majority, number 1. and जो 44% जो मैतेई रह गया, ये सिर्फ हिंदू नहीं है, ये गलत वो लोग ने गलत प्रोपेगेंडा नैरेटिव्स उन लोगों ने, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज से फंड लेने के लिए गलत नैरेटिव्स सुनाया फैला गया। हम लोग जो हिंदू है मणिपुर में देखा गया, तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन जो है ना, उसमें
हिंदू मैतई हिंदू जो अभी जो नेशनल मीडिया में मैतई हिंदू जो है लेस देन 30%। ये डाटा प्लीज़ सुनिए ये चैनल के माध्यम से। हिंदू मैतई इज़ लेस देन 30% और मोर देन 40% इज़ मैतई सनामिज्म। Okay, Meitei Sanamism is the indigenous religion of Meitei, where maximum they are, and there are Meitei Buddhists also. There are Meitei Christian also. So Meitei Muslim also, which we call it the Meitei Pangal, and there are around 1 to 2% of Buddhism also, and maximum of the Meiteis are Sanamism now. Then how can they blame that it is a fight between the Hindu and the Christian? Number one, this is a full propaganda. Number one, to get the Western interests, okay, Western fundings and all, whatever happened in the European Union. Number one. Number two, ये जो fights हो रहा है, it is not a, even it is not a fight between the Kuki and the Meitei. It is fight between the illegal immigrants coming from the Myanmar and with the minorities or with the civilian, with the innocent people. रियल जो कुकी जो है मणिपुर में कुकी जो है देर आर टू काइंड्स ऑफ कुकी, ओल्ड कुकी एंड न्यू कुकी। ओल्ड कुकी जो है दे हैव हिस्ट्री, उनकी इतिहास 100 साल इतिहास विद द मैते कम्युनिटी है। ये बॉन्डिंग अभी भी है, अभी प्यार है। बट द थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ द मिलिटेंट्स वो बाहर आके भी बोलना चाहोगे तो दे आर नॉट अलाउड टू, दे कीप देयर गन्स एट देयर हेड। देयर आर सो मेनी विलेज कुकी चीफ्स who doesn't wanted to support the poppy cultivation. They spoke, उसको मारा गया गोली मार के। ओके, अभी भी प्यार है हमारे साथ बिकॉज हमारे उन लोगों की जो ओल्ड ये कुकी है, वी कांट से दे आर नॉट रिफ्यूजीज। उनकी 100 साल की इतिहास है मैतई के साथ, मिथिकल स्टोरी है इसकी। बट वट एवर हैपनिंग इन मणिपुर इज बिकॉज ऑफ द न्यू कुकी, बिकॉज कुकी जो है इट इज़ नॉट अ कॉमन, एक सिंगल ट्राइब नहीं है, इट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म व्हाट दे डू, and there are so many, as you must have taken so many interview, Manipur is a very complex state having around 35 ethnicities. उसमें छोटा छोटा ट्राइब है, ओके, छोटा छोटा ट्राइब है, जैसे 2000 का या 8000 का। तो जो बाहर से जो आता है उनको क्या है, उनको इंडिजिनियस प्रूव करने के लिए उसने जो मणिपुर की इंडिजिनियस छोटा छोटा ट्राइब जो है उन लोगों ने खा लिया। खुद को पसंद नहीं है लेकिन उन लोगों ने खा लिया। कैसे? पैसे दे के या कुछ फॉल प्रोमिसेस करके। नाउ ये कुकी टर्म जो है ये एक सिंगल ट्राइब नहीं है, इट इज़ एन अम्ब्रेला टाइप ऑफ मेनी ट्राइब्स, एंड वो मैक्सिमम कहाँ से लेकर आया है, म्यांमार से, है ना। अभी भी फिर भी नाउ वट एवर एंड अनदर थिंग इज़ दैट जो म्यांमार और मणिपुर की जो एक सर ने भी बोल दिया, जो मणिपुर की जो सॉइल क्लाइमेट जो है कंड्यूसिव फॉर ग्रोइंग पॉपी, उसमें क्या है कि वो लोग जैसे मिलिट्री जुंता आने के बाद दे वांटेड टू शिफ्ट द कल्टीवेशन टुवर्ड्स मणिपुर, बिकॉज मणिपुर उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। बांग्लादेश से भी देखो, हर जगह कुकी की हिस्ट्री देखो, हर जगह उसको, बिकॉज उन लोगों को अपने होमलैंड के लिए सारे भगा दिया। एंड मणिपुर बीइंग मैतई, वी आर बिग हार्टेड, है ना। हम लोगों ने, मैतई लोगों ने उसको रहने के लिए जगह दे दिया, इसलिए हम लोग अभी भुगत रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। सर, आपसे बात करना मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरा हम ये एक वायलेंस देख रहे हैं मणिपुर के भीतर, और एक इस बात को जैसा मैम ने बताया कि मैतई और कुकी का एक लंबा रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन भी और तमाम चीज़ें हैं, तो मैं आपसे, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या सरकार के ढीले रवैये की वजह से, सरकार के लेट एक्शंस की वजह से जो मणिपुर है वो इतना ज़्यादा आगे हिंसा में झुलस गया है? तो अभी आपने कुकी करके सुन रहे हैं, यहाँ पे कुकी करके कोई ट्राइब होता ही नहीं है। तो कुकी नेम इज द कुली नाम है, गिवन बाय द बंगालीज, एंड ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम बंगाल, केम टू मणिपुर 1891. They brought some porters called coolies, and after Britishers or King Churchan Maharaj given shelter to them in the name of refugee in the Lamka Churchanpur, that is under the name of the
Surashan Maharaj. You know, that all people, we are staying together last 100 years. We are living together peacefully. Even Miss India World, India was happening in Manipur. It was peaceful. That problem happened. न्यू जो कुकी जो बोल रहे हैं, जो आए हुए हैं यहाँ से, दे आर नोमेडिक ट्राइब्स है. दे आर समवेयर इन म्यांमार, Bangladesh and some the border states of the India. They have come inside because these all tribals, so Jo and Mizos, the similar language, similar culture. So instead of loving to Manipur, they are more interested in the migrated militants. Okay. Now another problem is that or government of India that Kuki terrorists and Manipur government try agreement is there. This is called suspension of operation. Now in the month of March 2022, Manipur government has withdrawn that because the deforestation, poppy cultivation, drug business, Manipur government could not do it because there was a mission of Manipur government, war against drugs and to stop the deforestation and increasing number of so many migrant people. For that, he started war against drug. But that Manipur government has withdrawn that suspension of operation agreement. But why India government is not to withdraw it? Because there are two communities, Meitei communities and Kuki communities. Kuki community has got a fully sophisticated weapons, and Indian so many paramilitary forces are standing there in Manipur, deployed there. They are just watching there as a like audience because they can kill, burning the Meiteis. Meiteis doesn't know anything. ठीक है, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा कि ये जो पूरा एक मैं आपसे आखिरी प्रश्न कि ये जो पूरा वायलेंस हम देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और किस तरीके से मणिपुर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले जो हथियार उठा रहा है ना, जो हथियार को निकालना पड़ेगा, दिशाम करना पड़ेगा. जैसे भारत पाकिस्तान को बोलता है जो टेररिज्म मिलिटेंट कैंप जो है पाकिस्तान में, जब वो ख़त्म करेगा तब बातचीत होगा. जैसे मणिपुर में भी कुकी मिलिटेंट जो है जो सू करके जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो सर ने बताया था वो निकालने के बाद वो दिशाम हो जाएगा. उसके बाद अपने आप बंदूक जो फायरिंग जो है कुकी लोगों का मैतेई के ऊपर वो बंद हो जाएगा. एक बार फायरिंग बंद हो गई तो शांति चालू हो जाएगा. सो मैं जितने भी भारतवासियों से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है मणिपुर से भारत सरकार से आग्रह करता हूँ निकालने के लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए. ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट निकाल दिया गया तो कुकी लोग इनके पास हथियार रखने का कोई कानूनी लेकिन वो लोग बोल रहे हैं मैतेई के पास भी हथियार हैं. वो तो इन लोग ऑलरेडी है ना, वो इलीगल है. मैतेई के पास जो इलीगल ऑलरेडी डिक्लेयर किया, वो मार रहा है, जो जेल में डाल रहा है, कुकी लोग को नहीं कर रहा है. तो इसीलिए जो UAPH 1967 है ना वो लगेगा, ये एग्रीमेंट हट जाएगा तो आर्म्स एक्ट नहीं लगता इनको, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो इसके कारण इनको प्रोटेक्ट करके रखा है. ठीक है मैम, आपसे आखिरी सवाल. पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेवार हैं और भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जिम्मेवार है. जिम्मेवार कौन? नहीं, जिम्मेवार हम किसी को भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते. देखिए, जिम्मेवार ठहराना बहुत आसान काम है. जब अंदर घुस के देखेंगे ना, पहले जांच कीजिए, जांच की करने की क्षमता रखिए. जब तक जांच नहीं होता, आप कौन होते हैं कि भारत सरकार के ऊपर उसको आरोप लगाने वाले? हम लोग नहीं लगा सकते. अभी जो भी हो रहा है मणिपुर में उसके वजह सिर्फ इलीगल इमाइग्रेंट्स है और सू का जो भारत सरकार के साथ जो किया गया है उसको एक बार ख़त्म करेंगे ना तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. ये कर रहे हैं, करेंगे. हमारे विश्वास है कि भारत सरकार इस पर. बीरेंद्र सिंह की सरकार पे भरोसा है? भरोसा है. आपको भरोसा है बीरेंद्र सिंह सर? बिल्कुल 100%. आपको भरोसा है? आपको भी भरोसा है. और देखिए सर, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, हमारा छोटा सा भी 1 इंच का भी कोई भी हमारा ज़मीन हम किसी भी इलीगल इमाइग्रेंट से डर के हम नहीं देंगे. प्राइवेट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो मांग रहे हैं वो इंडिजिनस वाला नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं इलीगल इमाइग्रेंट्स लोग. तो हम उसकी डर से हम अपना एक छोटा सा हिस्सा भी हम अपने मणिपुर का नहीं करेंगे. ये हमारी आखिरी सोच है. शेर की तरह खड़े हैं आप. हाँ, बिल्कुल. हमारा मिनिस्टर शेर की तरह खड़ा है. हमारा हम लोग को ना सोया हुआ शेर को जगाया. पहली बार हम लोग सो रही थी, हम लोग शेर थे. इस बार हम लोग उन लोगों ने हम लोग को जगाया है.
इसलिए शुक्र है उन लोगों से। हम लोग बहुत शुक्र है। अदा करते हैं, इनकी वजह से हम लोग टाइम से कुछ तो करने को मिल गया। उन लोग की जो प्लानिंग है 2027 का था, हम लोग तो उनकी बहुत ज़्यादा, हम लोग तो इतना खुशी है पहले हो गया, नहीं तो हम लोग जीने के लिए जीने नहीं दे रहा था हम लोग। देखिए सर, हम भारत के वासी हैं, रहेंगे, और भारत के वासी थे, हैं और रहेंगे। और हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ सॉल्यूशन इन छोटी सी टाइम में जरूर निकालेंगे। विपक्ष के मतलब दावों में कोई दम नहीं। हमारा उसका कोई लेना विपक्ष का तो हम लोग तो मणिपुर इतना अच्छा लगा हम लोग तो, वही तो मैंने बोला, मोल खोल के बैठा हुआ है प्यार का। पहली बार वो लोग एकदम जैसे हम लोग को इतना प्यार किया, दिल में उतार के रखी है, कभी तस्वीर जैसे कभी उतारे ना। हम लोग तो विपक्ष को ये बोलूँगे, हमेशा जिंदगी पर हम लोग को याद रहे। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का Next 9 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आप कुछ बोलना ठीक है, बस हम ये चाहते हैं कि हम इस जगह में खड़े हैं, हम अनुरोध करते हैं अपने भारत सरकार से कि हमारा मणिपुर को बचाइए, जो इंडिजिनियस हमारे साथ है उनके साथ बनाए रखिए, पीस को लाइए। इस चीज़ को हम बार बार आग्रह करते हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं कि हमारे मांग को स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद। लास्टली हम जय भारत। आप लोग यहीं पे रहिए। हाँ, तो मैं सरकार से अभी हमने बात की और जाना, तो जनता का कहना यही है, मणिपुर के लोगों का कहना यही है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, भारत सरकार के कदमों के साथ है। लेकिन सरकार को भी समझने की ज़रूरत है कि देश के हर भाग को एक ही कूची से रंगा नहीं जा सकता। जिस भरोसे, जिस विश्वास की कसौटी पर उत्तर भारत के राज्य उतरते हैं, उसी तरीके से और उसी आधार पर अगर हम उत्तर पूर्व के भागों को रंगने की कोशिश करेंगे तो सरकार को थोड़ा बहुत असहज स्थिति में आना पड़ेगा। आसाम से वापस लौट गए और मणिपुर में भी लगभग अभी तक वही हो रहा है। सरकार की आगे की नीति क्या रहती है ये आने वाला समय बताएगा। मणिपुर के मसले पर संसद में और कितना हंगामा होगा ये भी भविष्य के गर्भ में है। तब तक नज़र बनाए रखिए मणिपुर पर और कामना कीजिए मणिपुर की हिंसा जल्द शांत हो जाए। सहयोगी सुमित, ऋतिक, सविता के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, Next 9 न्यूज़ के लिए धन्यवाद।